See, fourth someone asked me. This is simply sine cos. So this is the formula of cos A cos B plus sin A sin B. So the formula will be cos of A minus B in the fourth one. If you take that, it will be very easy. Sixth problem में right hand side sin cos में convert करना है मनोज, then it will be solved. Now ninth question, tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan theta equal to tan 8 tan 5 tan 3. So what we have to do, you need to find out certain relation between these three angles. So you can see here, this is 8 theta, this is 5 theta, and this is 3 theta, right? So what is the relation between 8, 5 and 3? So we can write 8 theta is equal to 5 theta plus 3 theta. Yes. So the ninth question solution will start like this. So today is the second lecture of Trigo 2. I'm doing the ninth one. Question number 2 का ninth. Question number 2 ninth. Okay, we will start like this, that we know. What do we know? That 8 theta can be equal to 5 theta plus 3 theta, right? We can write like this, and then we will write taking tan on both sides, tan on both sides, because we want all the terms to be in terms of tan only. So then it will become tan of 8 theta equal to tan of 5 theta plus 3 theta. I hope you all have understood this step. Now right hand side looks like tan A plus B. So we can apply the formula of tan A plus B here in the right hand side, which is tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. Yes, and this is equal to tan 8 theta as it is, left hand side is as it is, right? Now I will transfer this denominator to the left. So what will you get? I'll get here tan 8 theta as it is. It will be multiplied to this entire denominator, that is 1 minus tan 5 theta tan 3 theta, and which is equal to tan 5 theta plus tan 3 theta. I hope everyone, those who have not done this problem, would have understood this. Just cross multiplication. Okay. After this, this tan 8 theta will go inside and it will multiply. So I'll get next term, tan 8 theta into 1 is tan 8 theta minus tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta equals to, right hand side is same as it is, tan 5 theta plus tan 3 theta. अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा नेगेटिव टर्म है इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं और ये दोनों टर्म को इस साइड लेके आ जाते हैं. तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर tan 8 थीटा है, ये tan 5 थीटा और ये tan 3 थीटा को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किया, तो tan 5 थीटा बिकम्स माइनस tan 5 थीटा एंड tan 3 थीटा ऑल्सो बिकम्स माइनस tan 3 थीटा. और आपका जो ये टर्म था जो नेगेटिव था, राइट, उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो दैट बिकम्स tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 theta, and this is your final answer. This is what we wanted to prove, and hence the proof.
Gaurav is asking how to figure out the first step. See, that's the logic which we are using it. Okay, that if you can't get the first step, the first step is important. If you can't get the first step, then you won't be able to solve this particular problem. तो वो तो कैसा है, क्वेश्चन को देखते हुए इस टाइप के प्रॉब्लम्स अभी हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ये सब लॉजिक बिल्डअप होना शुरू करेगा कि हमको ऐसा ही क्यों लेना है, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एक सम में डेफिनेटली आउट ऑफ द वे किधर से ये 8 थीटा इक्वल टू 5 3 लिया, बराबर है, तो आ सकता है माइंड के अंदर। हाँ, बट लॉजिकली तो आपको समझता रहेगा कि मैंने 8 को 4 + 4 क्यों नहीं लिया, 8 को मैंने 6 + 2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज वी नीड 5 3 एंड 8 ना, तो इसके लिए हमने 8 को 5 + 3 लिया, राइट। हाँ, तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो हो जाएगा। तो दिस इज 9th प्रॉब्लम। Those who have not done it, please take a note of this. After this 10th problem सबको आया। 10 भी कुछ वैसा ही था। अब देखो 50 है, 40 है और 10 है, ठीक है। तो क्या रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, समझ में आ गया रहेगा आपको। आई थिंक अभी 10th जिसको नहीं आता था वो आ जाएगा। 50 को हम लिख सकते हैं ना 40 + 10 and then taking tan on both sides and solving them. So I think you all can get that, right? So 10th भी हो जाएगा आप लोगों का। अब हम 11th प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या? ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है इस सम के अंदर, दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती tan 3 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो अप्लाई किया। 8 थीटा में tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ऐसा बहुत ज़बरदस्ती अगर प्रॉब्लम को 50 मार्क का प्रॉब्लम बनाने गए तो हम 10 पेज में इसका आंसर निकल के ला सकते हैं। तो मैथ्स में ऐसा कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। डेफिनेटली बहुत सारे अलग मेथड हो सकते हैं, बट वो काफ़ी लेंदी होंगे, ठीक है। ये काफ़ी इजी है और ये तुरंत अपने को क्लिक होता है, सब 10 में है, 8 5 3 है, सो इट्स क्वाइट इजी, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस। मैथ्स में कोई भी मेथड रॉन्ग नहीं होता है, बट जस्ट कितना टाइम उसमें आपका कंज्यूम होता है वो इम्पॉर्टेंट है। So let's start with the next problem now, 11th one. Let me write down the question. 11th question is to prove that cos 27 degree plus sin 27 degree upon cos 27 degree minus sin 27 degree is equal to tan 72. ओनली फॉर tan थीटा है वो भी नहीं है, ठीक है। वो तो आप जैसे जैसे सम करोगे ना अनिश, थोड़ा सम और सॉल्व करो, थोड़ा अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सारा लॉजिक्स, ठीक है। चलो टेल मी हाउ कैन वी डू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या लॉजिक लगता है, कैसे लाएंगे ये 27 किधर से आया, 72 कहाँ से आया, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। Saisha is saying, no, sorry, Shravan is saying 45 plus 27. What is 45 plus 27? यस, देखो क्वेश्चन ही आपको हिंट देगा, लॉजिक समझ में आएगा कि सर 72 है और 27 है। तो अभी हमको मालूम है कि 27 में अगर मैंने 45 ऐड किया तो हो सकता है, राइट। तो वो जो पहले जैसा सम को हमने सॉल्व किया है वैसा भी हम कर सकते हैं कि 72 इक्वल टू 45 प्लस 27, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ सकता है। बट वेनेवर, अभी इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ, अभी ऐसा ही क्यों करेंगे
ये हमने 10th में सीखा है कि whenever you have cos sin in numerator and denominator, usually we divide by cos, right? So we will be using the same logic here. So I will be writing left hand side, which is cos 27 degree sine 27 degree upon cos 27 degree minus sine 27 degree. ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27. व्हाट विल हैपन, ऊपर प्लस टर्म है तो दोनों को cos डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, तो cos अपॉन cos हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 27 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 27 डिग्री. एंड इफ यू रिमेंबर, ऐसा मैंने एक फॉर्मूला आपको कराया था, याद आ रहा है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan 45 प्लस थीटा होता है ना, पाई बाई 4 प्लस थीटा, ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, तो सेम मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा यहाँ पर 27 है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 72 डिग्री. अब डेफिनेटली दूसरे मेथड्स हो सकते हैं जिससे आंसर आए, बट वो इससे लेंदी होंगे, ये काफ़ी इजी है. तो आपको ये थोड़ा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, टाइप वाइज आपको याद रखना पड़ेगा. कॉस कॉस साइन है, तो सर ने बोला था कॉस से डिवाइड करने का, तो 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन में कन्वर्ट हो गया, फिर वो तो फॉर्मूला है टैन का, तो आ गया हमको फॉर्मूला में डायरेक्टली आंसर. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ठीक, कंप्लीट करो. आई होप यू ऑल आर डूइंग अलॉन्ग विथ मी. साथ में नहीं करने को जम रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले समझ लो, समझने के बाद आप लिखो. नहीं टाइम मिला तो ऐसे भी मैं पीडीएफ भेजता हूँ, आप बाद में लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद बैठ के उसको अच्छे से समझ के लिखो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. सोल्यूशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा. ओके, कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. tan 10 tan 35 plus tan 10 tan 35, what can we do here? बोलो 12th में क्या करेंगे? दिख रहा है इजीली सामने से, क्या लॉजिक लगा सकते हैं नंबर्स को देख के, एंगल्स को देख के? कम ऑन. व्हाट 45? कंप्लीट हिंट तो दो अनिश. चलो सॉल्व करो सब लोग. Yes, tan 35 equal to 1. So how will you start? How will you start? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सेम टाइप के प्रॉब्लम हम लोग ने किया है. We know that, नहीं that's not wrong, that's also wrong. 35 plus 10 क्या बोल रहे हो अनिश? ऐसा स्टार्ट करेंगे हम लोग. tan 35 plus 10 किधर से आ गया? लॉजिक तो लगाओ.
कि पहला हमको लिखना है कि 45 इज इक्वल टू 35 प्लस 10 एंड देन टेकिंग बोथ साइड्स ना 10। डायरेक्ट 35 प्लस 10 कैसे आ गया 10 में? तो लॉजिक ये है कि ये तो मालूम है, ये ट्रू है। नाउ टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, सो tan 45 is tan of 35 प्लस 10। ठीक है, अब tan 45 होता है 1। अभी राइट हैंड साइड में tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये पूरा डिनोमिनेटर लेफ्ट में जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा, 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10 इक्वल टू tan 35 प्लस tan 10। और अभी ये जो टर्म है नेगेटिव वाला टर्म है, इसको हम राइट में ले लेंगे, तो जो प्रूफ करने को बोला था वो आ जाएगा डायरेक्टली। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू tan 35 ऑलरेडी है प्लस tan 10 भी ऑलरेडी है, ये पूरा माइनस का टर्म प्लस tan 35 इंटू tan 10 एंड हेंस द प्रूफ। समझ में आ रहा है सबको? देख लो। Have you all understood? If there is any new student, तो ये जो बार बार मैं tan a प्लस बी बोल रहा हूँ, इसका ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। हाँ, वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13th वन। क्वेश्चन है टू प्रूव दैट, ओके, cot a cot 4a cot a cot 4a plus 1 upon cot a cot 4a minus 1 is equal to cos 3a अपॉन cos 5a। ऐसा हमको प्रूफ करना है। प्रेम सोनी इज आस्किंग why can't we take tan 35 plus tan 10 to the right hand side after this step? I'll request other students to answer to the query of Prem. He's saying क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, tan 35 plus tan 10 क्यों नहीं ले लिया? In the last lecture, Prem, I had explained this only. अथर्वा रॉन्ग है, वो हमको 1 चाहिए इसके लिए। अनिश क्या बोल रहे हो? अथर्वा यू आर राइट, बिकॉज हमें 1 चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अनिश, 1 चाहिए था, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। 1 नहीं चाहिए रहता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता अंदर। So Atharva is right because tan isn't a term on its own. Saisha, there is no multiplication. Tan, it's not that a into b plus c, that you can do ab plus ac. This is complete one term Prem. Are you understanding? हाँ, ये नहीं कर सकते, इसके लिए तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर ये कर सकते थे तो इतना बड़ा साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, ये सब फॉर्मूले की क्या जरूरत थी? फिर तो हम डायरेक्ट लिखते ना साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो फिर तो कितना सिंपल हो जाता है कि नहीं? तो वो नहीं कर सकते, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया।
अरे आगे पढ़ाते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो तुम लोग। चलो आगे देखते हैं सोल्यूशन, प्रूफ इसका। Definitely cot is a more complex term, so we will start with left hand side only. So left hand side is cot A, cot 4A. नेक्स्ट स्टेप बताओ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए नेक्स्ट स्टेप आप मुझे मैसेज करो, व्हाट वी शुड डू। क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, कम ऑन फास्ट। यस, कन्वर्ट इन cos and sin, so come on start doing it. Cot A, cos A upon sin A into cos 4A upon sin 4A plus 1 whole upon cos A upon sin A into cos 4A upon sin 4A minus 1. Right? Can we cancel any term here? Can we cancel out anything here? Come on. Answer me fast. We cannot cancel. Many of you must be thinking sin A, cos A नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हमको मालूम है कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। सो दिस इज लाइक कॉस ए कॉस 4A और नीचे साइन ए साइन 4A, राइट। ओके स्टूडेंट, सो ये कॉस ए कॉस 4A साइन ए साइन 4A है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या। कॉस ए कॉस 4A, डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई करने को गया तो साइन ए साइन 4A आया, होल अपॉन साइन ए साइन 4A। सबको समझा न्यूमरेटर कैसे मैंने किया, होल अपॉन, वैसे ही डिनोमिनेटर कॉस ए कॉस 4A माइनस साइन ए साइन 4A अपॉन साइन ए साइन 4A। एंड नाउ सिंस इट इज नाउ डिवीजन ओनली, सो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज लेफ्ट दैट वी विल राइट डाउन। So I will be left with numerator cos A cos 4A plus sin A sin 4A, denominator cos A cos 4A minus sin A sin 4A. Now numerator looks like cos A cos B plus sin A sin B. तो ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, cos A माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ए तो ए है और बी 4A है, जब प्लस होता है तो माइनस लिखते हैं, और नीचे वाला है कॉस कॉस प्लस माइनस साइन साइन, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब ये क्या हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस 3A इज कॉस माइनस 3A और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस 5A। अभी हम सबको मालूम है, हमने फर्स्ट लेक्चर में अटेंड किया है फर्स्ट चैप्टर के, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉस माइनस 3A को मैं कॉस 3A लिख सकता हूँ डायरेक्टली अपॉन कॉस 5A एज इट इज, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। प्लीज गो थ्रू द सोल्यूशन। समझ लो, देखो कैसे किया हम लोगों ने। लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स फॉर्मूला।
Please complete this. Let me know if it is done. देखो एक बार में ये सारे सम्स नहीं आएंगे, अभी आप मेरे साथ एक बार कर रहे हो, घर पे भी आपको क्या करना है, वापस से एक बार दो बार, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये लॉजिक डेवलप हो जाएगा। 14th one, to prove that cos 15 minus sin 15 upon cos 15 प्लस साइन 15, ये तो एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सम किया था। स्टार्ट करो, चलो मेरे से पहले कर लेंगे आप लोग। टेक LHS। cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री cos 15 प्लस sin 15। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग बाई tan, सॉरी डिवाइडिंग बाई cos 15, तो cos बाई cos 1 माइनस tan 15, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan 15, 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा, फॉर्मूला इज tan 45 माइनस थीटा, सो 45 माइनस थीटा, थीटा इज 15, तो ये क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री होता है 1/√3, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अंडरस्टूड एवरीवन, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। these are थोड़े different problems but very simple। So let's start with question number 3 now। We have completed all the questions of question number 2, now it's 3। So in 3 we have sine A is equal to minus 5/13, and it is given that this A angle lies between pi and 3 pi by 2. This is first thing they have given. Then they have given cos B is 3 pi by 5, and it is given that B is between 3 pi by 2 and 2 pi। Okay, so this is given। न्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये जो दिया हुआ है पाई से बड़ा और 270 से छोटा, it means that the angle A lies in third quadrant, and this is greater than 270, less than 360, it means the angle lies in fourth quadrant, that's all।
And now we have to find sin a plus b, cos a minus b. Let me write down that also to find out. So we have to find first sine of a plus b, second cos a minus b, and third tan a plus b. अभी देखो आपको कुछ भी फाइंड करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसका मतलब साइन ए का एंगल का साइन ए भी चाहिए, कॉस ए भी चाहिए, बी के एंगल का कॉस बी भी चाहिए और साइन बी भी चाहिए। यस और नो? तो आप साइन ए का यूज करके कॉस ए निकालोगे और कॉस बी का यूज करके साइन बी निकालोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने लास्ट इसके अंदर लास्ट चैप्टर में किया था। ठीक है, तो पहला हम लोग फर्स्ट का यूज करेंगे, साइन ए माइनस 5/13। सो साइन ए इज गिवन, तो हम उससे कॉस ए निकालेंगे। सो वी हैव कॉस ए का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए is 1 minus sine square a. We will substitute the values of sine a. Sine a is minus 5/13. So minus 5/13 the whole square. Solve करेंगे इसको. So it is like 1 minus 25 upon 169. Then it is 169 minus 25 upon 169. Then it is 144 upon 169. This is cos square a. तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो cos a क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट ऑफ 144 अपॉन 169, एंड देयरफॉर cos a विल बी प्लस और माइनस 12/13। अब प्लस और माइनस आया है, तो हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज प्लस और माइनस, इट डिपेंड्स ऑन a, राइट? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट a is greater than 180, less than 270. It implies that A lies in third quadrant. Yes or no, students? And if it is in third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए कॉस ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -12/13। ये कॉस ए हो गया, कॉस ए हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व करोगे फॉर कॉस बी दिया हुआ है, उससे आप साइन बी निकाल सकते हो। ठीक है, या तो tan a प्लस बी के लिए tan a tan b भी चाहिए, तो कॉस और साइन मालूम है तो यहीं पर हम tan a निकाल लेते हैं, बाद में कंफ्यूज ना हो आप इसके लिए। तो एंगल ए की बात चल रही है तो ए का tan निकाल लिया हमने, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, -5/13, और ये है -12/13। तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 5/12। राइट स्टूडेंट्स? अभी जैसे हमने कॉस बी किया, साइन ए का पूरा ए में निकाल लिया, ऐसे आप सेकेंड वाला कर लो, कॉस बी 3/5। ओके, सो नाउ उसमें कॉस बी दिया हुआ है तो हम पहले साइन बी निकालेंगे। तो
we have sine square b is 1 minus cos square b. 1 minus cos b is 3 by 5. So it's 3 by 5 the whole square. So it is going to be 1 minus, be quick, 25 minus 9, 16 by 25 is sine square b. Therefore sin b प्लस और माइनस 4/5 हो जाएगा. ठीक है. अभी b कहाँ पर लाई करता है, तो हम लिखेंगे सिंस b इज ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π, इट मीन्स इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव. वहां पर तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन बी हो जाएगा -4/5. एंड देयरफॉर tan बी अब हम निकाल सकते हैं ना. सो देयरफॉर tan बी इज sin बी अपॉन cos बी. तो sin बी की वैल्यू दी गई थी 3/5. 3/5 माइनस 4/5. 5 कैंसिल, -3/4 इज द आंसर. तो आपने ए में साइन निकाला, कॉस निकाला, टैन. बी का भी साइन कॉस टैन. हाँ, बी भी नेगेटिव आया ना बच्चों. आंसर देखो -3/4 ही आया. अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब तो बस फॉर्मेलिटी हो गई. सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी. अप्लाई द फॉर्मूला. साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. अब बस अच्छे से एक साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू, कॉस बी की जगह कॉस बी की वैल्यू, जो जैसा है वैसा ही लिखना है आपको. ठीक है. tan b is also negative. You have taken sin b wrong. अच्छा, मैंने वैल्यू रॉन्ग लिखा क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने वैल्यू रॉन्ग लिखा जरा यहाँ पर. ये -4/5 है. -4/5 and this is 3/5, right? Now it is -4/3. ठीक है. अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना है साइन ए प्लस बी में. चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ. सेकेंड कॉस ए माइनस बी है, तो वो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. एंड द लास्ट वन is tan a plus b. So tan a plus b will be, you already know tan a, tan b and everything. Tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Okay. Please complete this and let me know the answer.
ओके स्टूडेंट्स, लेट मी नो द आंसर। थर्ड का सब बोल रहे हैं -33/56। लेट मी राइट डाउन -33/56। देन ठीक है, बाकी का ऊपर बताया गया आप लोगों ने, मैंने देखा नहीं चैट्स में। हाँ, सेकेंड इज -16/65, -16/65। And what about first one? -16. No, 33/60. Okay. Please check your answers, all of you. These are the final answers for these three questions. I hope you all have understood this. ये तो ऐसे हमने 10th में भी किया था, साइंस कॉस कैसे निकालते थे, बस यहाँ पर वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग ने प्लस और माइनस करना है। डन? Should I take the next question now? Okay. Now fourth question. Now fourth थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में क्या गिवन है फर्स्ट लिख लेते हैं। गिवन tan A is 5/6, tan B is 1/11. Okay, then we have to prove that सिंक हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। या वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी इज 5/4। अभी जो प्रूव करना है उसके अंदर कोई tan sin cos ऐसा कुछ भी नहीं है, इट जस्ट angle that a plus b will be 45. So can anyone tell me how can we proceed to this particular problem? A plus b is 45 को कैसे solve करेंगे? Tell me. It is simple. Multiplying both sides by 10. अरे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 करेंगे कैसे? टू, आप टू प्रूव दैट को ही प्रूव करोगे पहले, ये तो प्रूफ करना है, तो इसको दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है ना। समझे क्या अथर्वा? वो तो प्रूफ करना है ना अपने को, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। जो भी हमको यूज करना है इसका यूज करना है। तो हमको मालूम है कि हमको a प्लस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सम को tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट वी हैव tan a plus b formula, that is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and we will substitute the values of tan a tan b because that is what we know, 5/6 and 1/11. So let's see, 5/6 plus 1/11 upon 1 minus 5/6 into 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 5 जा 55 प्लस 6 अपॉन 66, यहाँ पर होगा 1 माइनस 5 अपॉन 66, मल्टीप्लीकेशन किया, 55 प्लस 6 इज 61/66, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 66 माइनस 5 इज, सॉरी ये 66 है, 61/66, and you will see this entire term is same, so it gets cancelled, so we got 1. ये 1 किसका आया है? tan a प्लस बी का आया, राइट? बट हमको मालूम है कि 1 कब होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 की जगह tan 45 लिखा, और यहाँ पर है tan a प्लस बी, so comparing both sides we will get a plus b as pi by 4 and
hence the proof. Simple. Please write down. Easy one. Done? Fine. So here we have completed the first exercise of Trigo 2, and I hope everyone would have enjoyed this exercise a lot. In this exercise, we have seen compound new formulas of compound angle, a plus b, a minus b, and everything, right? And there are few solved examples also. Around 8 solved examples are there. So all these solved examples are homework. Sometimes even in solved example, you get interesting questions. तो आप जरा उसको सॉल्व करना, ठीक है? एंड एनीथिंग इफ यू डोंट गेट इट, तो वो हम लोग करेंगे. जैसे ये देखो 7th प्रॉब्लम. अभी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम तो हमने एक्सरसाइज में भी नहीं किया. टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा, वी हैव टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज गामा. सो इसको सॉल्व करना, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड. दिखने में वो ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बट अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. ओके. इसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज है, दैट इज 3.2. इट इज बेस्ड ऑन अलाइड एंगल्स, जो कि हमने ऑलरेडी इन एडवांस फर्स्ट ट्रिगो में ही कर लिया था. यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स. यू रिमेंबर ये चार्ट? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा. याद आ रहा है आप लोगों को ये चार्ट? हाँ, ठीक है. तो ये पूरा हमने ऑलरेडी कर लिया है. इसका अब एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हमको इसका यूज़ करके बाकी के चीज़ों को फाइंड करनी है. इसके लिए हम डायरेक्टली ये सम को स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अलाइड एंगल्स. बट स्टिल एक बार हम अलाइड एंगल रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसको. तो रिवाइज कर लेते हैं अलाइड एंगल्स, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. ओके स्टूडेंट्स? So very first question is, what is allied angles? So allied angles matlab if the sum or the difference of measures of two angles is either 0 or an integral multiple of 90. If sum, addition, or difference of the measure of two angles is 0 or integral of 90, 90 का multiple, then these angles are said to be allied angles. जैसे minus theta, 90 plus theta, 90 minus theta, 180 plus theta, 180 minus theta, 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 2 pi plus theta, 2 pi minus theta. These are some standard allied angles जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So let me go back to the notebook. ऑलरेडी मैंने टेबल बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. To understand allied angles, we need to first understand about the quadrants and trigonometric ratios in that quadrant. So, allied angles. Okay. Fine. So, to understand allied angles, सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं और x एक्सिस बनाते हैं. ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है. So we all know that all trigonometric ratios are positive in the first quadrant. In second quadrant, sine and cosec is positive. Here tan, cot positive. Here cos and sec positive. ये 0 डिग्री होता है. 0 to यहाँ पर होता है 90. 90 से ये होता है 180 पाई.
180 से ये होता है 270, 3π/2, और 3π/2 से ये वापस यहाँ पर आता है, तो ये होता है 360। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स, जो स्टैंडर्ड अलाइड एंगल्स है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सो वी विल हैव टू ड्रॉ द टेबल। तो सबसे पहले हम लोग ने 90 माइनस थीटा इस अलाइड एंगल को देखेंगे, इसके बाद 90 प्लस थीटा, देन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, देन 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360, that is 2π minus theta and 2π plus theta, and लास्ट में एक नेगेटिव एंगल का माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो अलाइड एंगल्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, तो ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है, मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 90 से कम है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 प्लस थीटा यानी 90 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा, 180 से थोड़ा कम, तो 180 तो पूरा सेमी सर्कल हो जाता है, उससे थोड़ा कम तो वो सेकेंड में ही आ जाएगा। यस, 90 प्लस थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से थोड़ा ज्यादा। 3π/2 माइनस विल बी स्टिल इन थर्ड, 3π/2 प्लस कर देंगे तो फोर्थ में चला जाएगा वो। 2π माइनस करेंगे तो फोर्थ में रहेगा, बट 2π के प्लस चले गए तो ये फर्स्ट में चला जाएगा। एंड लास्ट माइनस थीटा, अभी थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, और नेगेटिव एंगल के लिए हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, तो क्लॉकवाइज में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। यस, डायग्राम में देखते हैं अभी। तो 90 माइनस थीटा जो एंगल है वो यहां पर ही होगा, 90 प्लस बोला वो यहां पर आ गया, 180 माइनस बोला वो भी यहीं पर आएगा, 180 यहां पूरा है उससे माइनस किया हमने। नेक्स्ट इसमें 180 प्लस थीटा आएगा एंड 270 माइनस थीटा आएगा, यहां पर 270 प्लस थीटा आएगा एंड 2π माइनस थीटा आएगा, और यहां पर 2π प्लस थीटा भी आ जाएगा। और नेगेटिव एंगल का मतलब होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, तो उसका एंगल ऐसे बनता है। ये जो एंगल है इस तरीके से बनता है, तो ये जो एंगल है वो माइनस थीटा होता है, इसके लिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। हाँ वो प्लस ही है, मैंने प्लस ऐसा नहीं लिख पाया, वो लिख नहीं पाया, 90 प्लस थीटा। ओके, इतना तो सबको मालूम है, इतना समझ में आया सबको। अच्छा, अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप अलाइड एंगल फाइंड आउट करोगे, एंड इन अलाइड एंगल्स इफ यू हैव 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, मतलब जितने भी 90 के मल्टीपल्स है, ठीक है, जैसे ये 90 का मल्टीपल है, उसके बाद ये 3π/2 90 का मल्टीपल है, दिख रहा है, और तो कोई 90 का मल्टीपल नहीं है। तो जो 90 के मल्टीपल होते हैं उसमें साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन। यस, साइन बिकम्स कॉस, cos becomes sin, tan becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec, cosec becomes sec। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, उसको ऐसा लिख देता हूं, चेंज, तो सी लिखता हूं मैं, इसमें भी चेंज होगा। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी मैं स्टार मार्क कर देता हूं उसको। चेंज किसके अंदर होगा, एक इधर चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज होगा। बाकी सब में
Sine will remain sine, cos will remain cos, tan will remain tan, cot will remain cot, sec sec, cosec cosec, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने एंगल लिख दिया। अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिख देता हूँ। तो ये हमारा है साइन, अब it's quite big, let me make it small। सो ये साइन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर ये होगा कॉस, हियर tan, then we have cot, sec, कोसेक, एंगल ऊपर लिखे हमने, ठीक है। तो अब ये जो कॉलम होगा फर्स्ट कॉलम, वो सबका 90 माइनस थीटा रहेगा। सेकेंड कॉलम सबका 90 प्लस थीटा, एंड सो ऑन। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन्स नाउ। ओके, नाउ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, मैंने बोला आपको। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। एंड 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सब पॉजिटिव ही होंगे। तो साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया साइन, टैन का हो गया कॉट, कॉट का हो गया टैन। मैं साइन नहीं देख रहा हूँ प्लस की माइनस, क्योंकि मुझे मालूम है 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर मुझे ट्रिगो पे ही फोकस करना है। सेक बिकम्स कोसेक एंड कोसेक बिकम्स sec. This is the first one, 90 minus theta, right? Next, 90 plus theta. 90 plus theta में क्या होगा, तो 90 plus theta is in second quadrant, तो second quadrant है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन बिकम्स प्लस कॉस थीटा। साइन का कॉस तो होगा क्योंकि 90 है, और नीचे कोसेक विल बिकम प्लस सेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या लिख देंगे, कॉस बिकम्स माइनस साइन, कॉस थीटा बिकम्स माइनस साइन थीटा, कॉट थीटा बिकम्स माइनस कॉट थीटा, टैन बिकम्स माइनस कॉट, कॉट बिकम्स माइनस टैन, सेक बिकम्स माइनस कोसेक थीटा। ओके, ये हो गया हमारा 90 प्लस थीटा। ऐसे ही हम 3π/2 पे आ जाते हैं डायरेक्टली, जहां पर चेंज हो रहा है। तो 3π/2 थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव, सो लेट्स कंप्लीट दिस। सो टैन यहाँ पर, हाँ, सो टैन विल बी प्लस कॉट थीटा एंड कॉट विल बी प्लस टैन थीटा, बाकी सब नेगेटिव। मतलब पहला साइन का माइनस कॉस, कॉस का माइनस साइन, नीचे सेक का माइनस कोसेक एंड कोसेक का माइनस सेक थीटा। वैसे ही 90 प्लस थीटा में 90 प्लस इज इन फोर्थ, फोर्थ में कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, तो अगेन कॉस एंड सेक, तो मतलब कॉस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंड सेक का प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा,
बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन का माइनस कॉस, टैन का माइनस कॉट, कॉट का माइनस टैन, कोसेक का माइनस सेक। यस, तो ये हमने पूरे कन्वर्ट कर दिए 90 वाले जिसमें चेंज होता है। अब बाकी सब में साइन रहेगा तो साइन ही आएगा, कॉस रहेगा तो कॉस ही आएगा। चेंजेस क्या होगा, साइन देखने का, प्लस या माइनस। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, बिना कुछ सोचे, व्हाट आई डू, मैं सब जगह साइन, जैसे साइन फाइंड करने जा रहा हूं मैं, तो साइन का मैं लिखूंगा साइन, कॉस का लिखूंगा कॉस, टैन का लिखूंगा टैन। क्यों, चेंज नहीं होता है, सेम ट्रिगो आता है। कॉट विल रिमेन कॉट, सेक विल रिमेन सेक, कोसेक विल रिमेन कोसेक। ठीक है, ऐसी मैं बाकी भी कंप्लीट कर लूंगा। 180 प्लस थीटा में भी वही होने वाला है। साइन विल रिमेन साइन, दिस विल रिमेन कॉस, देन टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, फिर वैसे ही आगे में ये कौन सा कॉलम है, 2 पाई, उसमें भी सेम रहेगा साइन, और 2 पाई प्लस में भी सेम ही रहने वाला है, ये भी साइन का साइन रहेगा, और माइनस थीटा में भी सेम रहने वाला है, ये भी साइन का साइन रहेगा। फिर कॉस विल रिमेन कॉस, 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 टैन, 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 कॉट, 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 सेक, 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 कोसेक, कोसेक, कोसेक। अब हमको बस क्या करना है, इन सब में साइन को डिसाइड करना है। तो 1 बाई 1 आते हैं, 180 माइनस थीटा, कम ऑन, 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकेंड, सेकेंड है तो क्या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, राइट, एंड कोसेक पॉजिटिव। तो बस साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी के सबके आगे नेगेटिव साइन, बस दिख रहा है, 4 को नेगेटिव कर दिया, बाकी के दोनों प्लस। उसके बाद 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, तो टैन एंड कॉट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। आई होप सबको समझ में आ रहा है। माइनस, नेक्स्ट 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक, तो कॉस एंड सेक मतलब सेकंड वाला छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव, टैन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव। फिर 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक, तो साइन विल बी नेगेटिव, just a minute, sine will be negative, cos will be positive, tan negative, cot negative, sec positive, cosec negative। इसके लिए हम cos माइनस थीटा को प्लस cos थीटा लिखे थे, याद आ रहा है, sec माइनस थीटा को प्लस sec थीटा लिखेंगे, बाकी सब हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। हमने सारा डिटेल इसमें अच्छे से लिख दिया है। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया चार्ट।
फाइन. सो अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी सब पे बेस्ड है. तो बिकॉज वी हार्डली हैव 10 minutes नाउ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा आप लोग लर्न करके आओ, बिकॉज 10 minutes में वो इनकम्प्लीट रह जाएगा जो नेक्स्ट पार्ट है. क्योंकि वो जब हम लोग करेंगे ना तो बहुत सारे सम हमको एक साथ करना पड़ेगा, तो वो पूरा फिट होगा आपके माइंड में. सो वी विल स्टॉप फॉर डे हियर, provided that in the next class, because I took so much time to write and explain you the same thing which we have already done it before. So you will revise this everything so that next class में मैं अप्लाई करूंगा तो फिर मैं उस टाइम वापस फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आई विल डायरेक्टली यूज इट. सो फिर ऊपर से नहीं जाना चाहिए आप लोगों को. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, बाय बाय.